देश संस्कृति कोई हो, गहनों से लोगों का प्यार जग जाहिर है। कई लोगों को इन्हें पहनने का शौक होता है तो कई इनका इस्तेमाल अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन शौक से ज्यादा जरूरी है बारीक नजर। जो आंख धोखा खा गई तो कोई शख्स आपको नकली गहने पकड़ाकर बड़ा चूना लगा सकता है। राजस्थान के जयपुर में ठगी का एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसे जानकर गहनों का शौक रखने वाले दंग रह जाएंगे। यहाँ अमेरिका की एक महिला को कथित तौर पर एक दुकानदार ने नकली गहने बेचकर करोड़ों का चूना लगा दिया। अमेरिका की रहने वाली चेरिश ने माणक चौक थाने में जयपुर के एक दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है कि उन्हें 300 रुपए के आर्टिफिशियल स्टोन 6 करोड़ के हीरे बताकर बेच दिए गए। साथ ही गहनों के नकली सर्टिफिकेट भी थमा दिए गए, लेकिन जब महिला ने दूसरी जगह पर गहनों की जांच करवाई तो वो नकली निकले। यूएस की रहने वाली चेरिश को जब पता चला कि उनके जेवर नकली हैं, तो वो शिकायत करने दुकान पर गईं, लेकिन वहां आरोपी दुकानदार ने झगड़ा शुरू कर दिया। विवाद के बाद गौरव ने भी विदेशी महिला के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। चेरिश ने अपने साथ हुई इस ठगी की जानकारी यूएस एम्बेसी को भी दी है। वहीं अमेरिकी एम्बेसी की शिकायत पर पुलिस ने ज्वेलरी शॉप के मालिक बाप बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन अब दोनों बाप बेटे फरार हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी ओर मुख्य आरोपी गौरव के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। From the beginning, Yes. Gaurav, Sunny, and his father, with Rama Exports out of Jaipur, have been systematically cheating me in jewelry. They have been shipping me 9-carat and gold plate instead of 14-carat. They have been shipping me entirely moissanite instead of natural diamonds. It's not just me, it's about 10 other designers that are impacted by him and his fraud. He has been systematic in how he has done the fraud. He has included fake certificates and other people to lie on top of his lies. It has been incredibly damaging to my business. I have spent over $495,000 US with him, all of which are in question. He has damaged my reputation as a designer. Other designers are also we don't even know who to contact. Some of our customers have bought pieces and they're out there and they're fake. So we need to recall all of the jewelry. Bajrang Singh, with the additional DCP, has been pivotal in helping bring Gaurav to the table and basically tell him and make him face his crimes. And Gaurav actually admitted to what he has done and admitted to the fact that he was going to repay me. He was given 2 days to do a wire and he completely fled. So he was trying to arrange money and then he just stopped and he turned off his phone and has been missing for 2 days with his wife and his kids. No one can find him. I'm out so much money. I'm with terrible jewelry and that's what I'm facing. So, what is your name and where are you from and how do you contact to Mr. Gaurav and Rajendra, and have you lodged any FIR in India, and what is the further process? Absolutely. My name is Cherish Narkia. I'm the owner of Cynthia Ann Jewels and Lene Fine Jewelry in both Houston, Texas and Vail, Colorado, the ski resort. I did file an FIR. Initially, Gaurav and his father had threatened me if I had gone to the police that they were going to file an FIR on me and that accidents happen and that they were going to take my passport away if they filed an FIR on me. It was completely fraudulent. He was accusing me of stealing $50,000 or $100,000. He was telling all my friends in the States that I was a criminal. I have just done nothing but try to report my crime. पास यूएस एक लेडी है जिन्होंने हमें एक रिपोर्ट दी कि वो पिछले 2 साल से जोरी बाजार के अंदर 2 व्यवसायी हैं जिनके अंदर वो व्यापार कर रही थी जिनके साथ, और
जब उसने सारा 2 साल हो गए, उसके बाद में एक उसने एग्जीबिशन लगाई और एग्जीबिशन यूएस के अंदर एग्जीबिशन लगी और उसमें अपने कुछ आइटम जब उसने चेक करवाए तो उनके अंदर काफ़ी गड़बड़ी मिली और उसकी गड़बड़ियों को दूर करवाने के लिए जब यहाँ पे जोहरी बाजार में जहाँ व्यवसाय का कारोबार था वहाँ पे आई तो वहाँ जब उसने उसके साथ बातचीत की, उसमें जो कमियां थी उनसे दूर करवाने की कोशिश की तो वो उल्टे उनको ही परेशान करने लगे और जो जैसे उनके जो डायमंड होने चाहिए थे, उनके अंदर मोसेनाइट पत्थर था वो निकला, जो गोल्ड की मात्रा 14 कैरेट होनी चाहिए थी उसकी जगह वो 9 कैरेट निकला। तो इस बात का उनके बाद काफ़ी जिद बहस हुई और उस जिद बहस होने के बाद वो ये कह के कि मैं थाने में रिपोर्ट करूंगी जाने लगी तो वो उन लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की। उस चीज का उन्होंने वीडियो, उनके कैमरे लगे हुए थे, उसको आधार बनाते हुए थाने के अंदर ये लेके गए कि साहब ये हमारे साथ हमारे गहने लेके भाग रही थी। तो जब ये बात वहाँ पे थाने पे पहुंची और थाने पे गए और चेक किया गया तो ऐसा नहीं था। फिर उस लेडी ने भी यूएस एम्बेसी थी उसमें कंप्लेंट की और कंप्लेंट के बाद में चूंकि वहाँ माणकचौक थाने में प्रकरण दर्ज हुआ था और हमारे सीपी साहब और डीसीपी साहब के आदेशानुसार इसका अनुसंधान मुझे दिया गया था। शुरू में दोनों आपस में उनकी बातचीत हो रही थी कि वो उनके जो पैसे लौटाने को तैयार थे और लगभग 6 करोड़ रुपए का पिछले 2 साल में उसके साथ व्यवसाय किया था, लेकिन अंत में वो बाप बेटे उनको पैसे नहीं दे के और फरार हो गए। और उसमें सबसे बड़ी बात देखने वाली एक तो थी जो उनको हॉलमार्क के सर्टिफिकेट बना के देते थे, उनको जब हमने जांच करवाया तो वो फर्जी निकले। ये उस आदमी से सर्टिफिकेट तैयार किए गए जिसके पास जो सर्टिफिकेट देता था उसको न तो सोने को नापने का कोई यंत्र था और न ही डायमंड को चेक करने का यंत्र था। इसके अलावा उसके जो उसने वो सर्टिफिकेट ले रखा था उसको बनाने का वो भी फर्जी था, उसके पास कोई यंत्र नहीं थे। तो उस आधार पे फिर हमने वो जो व्यवसाय जो सर्टिफिकेट बनाता था नंद किशोर उसको हमने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जो दोनों व्यवसायी हैं वो फरार है तो हमने जो गौरव सोनी है जो इनका प्रोप्राइटर उसका हमने लुकआउट नोटिस जारी करवाया है। दूसरा राजेंद्र सोनी जो उसके पिताजी हैं उसके साथ सहयोग करते हैं बिजनेस में, उनका भी हम लुकआउट नोटिस जारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमें जानकारी मिली है कि इसने जो इस तरह का पैसा कमाया गया है उससे एक इन्होंने 3.5 करोड़ का एक फ्लैट भी अग्रवाल जो सर्किल है अग्रसेन सर्किल है उसके पास में अक्षर दुर्लभ के नाम से एक बिल्डिंग बन रही है उसके अंदर भी उन्होंने बुक करवाया, उसकी हमने जानकारी ले ली है। उसको भी हमने जो उसका प्रोप्राइटर है उसको लिख के दिया है कि हमारे से पूछे वगैरह इसको आगे से कोई कार्रवाई हो तो जानकारी में देंगे। उनकी जो वाइफ जिनके नाम से फ्लैट लिया है वो भी जब से ये घटना हुई उसके बाद में जब उसको चेक किया तो वो भी अपने घर से ताला लगा के फरार है। हम आगे इन दोनों मुलजिमों को ढूंढने के लिए हमने टीमें लगा रखी है, जल्दी उनको गिरफ्तार